So hello students, so we are discussing exercise on metals and non-metals. So we'll try to solve further questions of this exercise. We'll try to discuss it. And today now we are discussing at question number 4. And in that question 4 there are 4 parts of it. उसमें से first part is what is done to prevent corrosion. The second is, what are the metals that make alloy of brass and bronze. And then what are the adverse effects of corrosion and what are the uses of noble metal. So let's start with the first part of it. First part, in short, if you can just remember, we can prevent corrosion by selecting the following things. First is metal type, protective coating, environmental measurements, sacrificial coating and design modification. Metal type is very simple. You choose the metal, protective coating, you coat it, environment, don't keep it in moisture, and sacrificial coating and design. We'll see one by one in detail. First is metal type. So one simple way to prevent corrosion is to use a corrosion resistance metal. So we हमको मालूम है एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील आर व्हाट corrosion resistance metal. इसलिए अगर आप घरों में देखेंगे जो भी आप यूटेंसिल्स किचन में यूज होते हैं वो मोस्टली स्टेनलेस स्टील्स होता है और कॉपर एल्युमिनियम होता है. और डिपेंडिंग ऑन द application, these metals can be used to reduce the need for additional corrosion protection. So ये पहला है metal type. So first is metal type. Then second is applying. Then the second is protective coating. So the application of paint coating is the cost effective way of preventing corrosion. Paint coating acts as a barrier between the metal and atmospheric moisture to avoid its contact from getting from the atmosphere, so that it do not get rusted. So इसके लिए examples like black paint, any paint you can use. जैसे अगर आप देखते हैं जब आप चैतन्य एकेडमी में आते हैं तो आप जब बेंच पे बैठते हैं, जो नीचे का पूरा बेंच है वो स्ट्रक्चर जो है पूरा बेंच का वो आयरन का बना हुआ है, लेकिन उसको कोटिंग ब्लैक कोटिंग की हुई है, ब्लैंक पेंट से उसको कोट किया हुआ है. मतलब वो क्या है, उसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं ताकि उसको वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से कंटैक्ट में आए, वो उसका रस्टिंग रुक जाता है. फिर अनदर इज पाउडर कोटिंग. दिस प्रोसेस ए ड्राई पाउडर इज अप्लाइड to the clean metal surface to avoid its contact with the surroundings. Oxygen, for example, acrylic, polyester, epoxy, nylon और urethane. So ये सब पाउडर कोटिंग में ये मटेरियल्स यूज होते हैं. मोस्टली पाउडर कोटिंग कहाँ यूज होता है, जैसे आप देखते हैं गाड़ियों में पाउडर कोटिंग किया जाता है व्हीकल्स में, so that it is properly protected. And then नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल मेजर्स. तो ये सिंपल है. corrosion is हमको मालूम है, is a chemical reaction of the metals and gases in the surrounding environment. So by taking measures to control the environment, these unwanted reactions can be minimized. For example, it would be decreased by treating the water in water boilers with softeners to adjust hardness, alkalinity और oxygen content. So आप environment को भी आप कंट्रोल करो तो ऑटोमेटिकली आपका corrosion नहीं होगा, है ना. और बहुत सारे इसके तरीके, जैसे आपको मालूम है कि मॉइस्चर की वजह से आयरन खराब हो जाता है या कॉपर खराब हो जाता है, आप उसको मॉइस्चर में डालिए नहीं तो सिलिकेट्स पैकेट्स आते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और आपके कैबिनेट को ड्राई रखते हैं. सो दोज थिंग्स यू कैन टेक केयर बाय टेकिंग एनवायरमेंटल मेजर्स. और दूसरा है डिजाइन मॉडिफिकेशन. डिजाइन, जैसे अभी देखो मैं कैप्सूल में लेगा, मैं स्मॉल लेगा तो आपका अटेंशन आ गया वापस होगा. तो डिजाइन मॉडिफिकेशन क्या करता है, डिजाइन मॉडिफिकेशन हेल्प टू रिड्यूस द कोरोजन एंड इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी इन एनी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टिव एंटी कोरोसिव कोटिंग. आइडियली डिजाइन शुड अवॉइड ट्रैपिंग डस्ट एंड वाटर, encourage movements of air and avoid open curvax, ensuring the metal to accessible for a regular maintenance will also increase longevity. Simple design, आप ऐसा डिजाइन बनाए यहाँ पे उसका हवा का एंट्री अच्छा हो ताकि उसमें मॉइस्चर ना घुसे, मतलब एनकरेज मूवमेंट ऑफ एयर एंड अवॉइड कर्विक्स ताकि उसमें कुछ अंदर डस्ट या पानी जमा ना हो जाए. तो डिजाइन के हिस्से से भी हम बचा सकते हैं कोरोजन को. फिर दूसरा है सैक्रिफिशियल कोटिंग. इसमें क्या होता है, सैक्रिफिशियल इन्वॉल्व्स कोटिंग द मेटल विथ एन एडिशनल मेटल टाइप दैट इज लाइकली टू ऑक्साइड. मतलब ऊपर का सैक्रिफाइस हो जाएगा और आपका एक्चुअल मेटल बच जाएगा. इसमें 2 टाइप होते हैं. एक कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है. इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन इज कोटिंग ऑफ आयरन अलॉय स्टील विद जिंक. इसमें आप जिंक को ऊपर से कोट करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग जिंक. is more active metal than the steel and weighs starts to corrode, and
when it starts to corrode oxides which inhibits the corrosion of the steel. This method is known as cathodic protection. तो बेटा इसमें क्या होता है, सिंपल है, इसमें जो स्टील रहता है उसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है. तो जिंक क्या होता है, इट ऑक्साइड्स फास्ट. जब ये ऑक्साइड करता है तो स्टील को एनवायरनमेंट के टच में आने से रोक देता है, तो स्टील ऑक्साइड हो जाता है और स्टील बच जाता है. जिंक ऑक्साइड हो जाता है, स्टील बच जाता है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है. तो बेटा इसमें क्या हो जाता है, स्टील के ऊपर जिंक का कोटिंग जाता है और जिंक ऑक्साइड हो जाता है और स्टील बच जाता है. दूसरा एनोडिक प्रोटेक्शन. एनोडिक प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स कोटिंग ऑफ आयरन अलॉय स्टील विथ लेस रिएक्टिव मेटल सच एज टिन. यहां से ज्यादा रिएक्टिव था वो कोट किया, अभी यहां पे हमने जो लेस रिएक्टिव उसको कोट किया, टिन को. टिन विल नॉट कोरोड, so the steel will be protected as long as the tin coating is in the place. This method is known as anode protection. तो बेटा ये टिन प्रोटेक्शन अगर आप देखेंगे, हम बड़े बड़े जो बर्तन यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है. इवन टिन कोटिंग इवन ब्रास के ऊपर भी किया जाता है. टिन कोटिंग ये बचाता है आपके मेटल को करोड होने से. तो इसको बोलते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन. कैथोड में बेसिकली जो मेटल को हम कोट करते हैं वो उड़ जाता है, एनोड में वो स्लो, उसका रिएक्शन ही नहीं होता है, इसलिए आपका मेटल बच जाता है. फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट आता है कि व्हाट आर द मेटल्स दैट मेक द अलॉय ब्रास एंड ब्रोंज. तो ये आपने टेबल देखा ही होगा. तो ब्रास एंड ब्रोंज 90% ऑफ कॉपर और टिन है इसमें, और उसमें 70% ऑफ कॉपर और 30% जिंक है. तो यही आंसर इसका लिखना है बेसिकली. फिर है तीसरा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन. तो मैंने कुछ जॉट डाउन किए, और भी हो सकते हैं कुछ. तो इसका आप यू कैन जस्ट पॉज दिस स्क्रीन एंड नोट डाउन ऑल दिस. Many of them you already know, so we'll not spend more time on it. And then next is use of noble metals. तो बेटा ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कुछ और ऐड किए हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं. आप अगेन वीडियो को पॉज करके ये सब पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं. इसमें डाला है यूजेस ऑफ सिल्वर, यूजेस ऑफ गोल्ड एंड यूजेस ऑफ प्लैटिनियम. और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा जो आपका इसका एक्सरसाइज का है वो है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, रस्टिंग आर गिवन, ऑब्जर्व द 3 टेस्टिंग. इसमें क्या किया है, 3 बेटा टेस्ट ट्यूब्स लिए, 1 2 3 देख रहे हैं. सब में एक नेल वाटर, एयर वाटर डाला है, फिर इसमें बॉइलिंग वाटर और नेल डाला है, एयर डाला है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला है नीचे और ड्राई एयर रखा. तो आपको वो बताया है व्हाई द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड, कि इसमें रस्ट क्यों नहीं हुआ एयर का, और वाई द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 इज रस्टेड हाईली, ये ज्यादा रस्ट क्यों हुआ. और फिर वुड द नेल इन द टेस्ट 3 विल बी रस्टेड, क्या ये रस्ट होगा. तो 3 कंडीशंस आपको बतानी है बेटा. पहले तो बताइए ये रस्ट क्यों नहीं हुआ, फिर बोला कि ये ज्यादा रस्ट क्यों होगा, अभी पूछा है कि क्या ये रस्ट होगा कि नहीं होगा. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बेटा कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर कोरोजन क्या क्या है. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर और मटीरियल इटसेल्फ. ठीक है, तो उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे. ये 3 केसेस है हमारे पास. तो एक पहला केस देखेंगे. पहला केस क्या है, द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड बिकॉज इन टेस्ट ट्यूब 2 वी टेक बॉइलिंग वाटर, सो ऑल द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, एंड इफ द आयरन नेल डू नॉट गेट सप्लाई ऑक्सीजन देन कोरोजन इज नॉट कैरिड आउट. तो आपने जब पानी को बॉइल किया, ऑक्सीजन उससे निकल जाता है, तो ऑक्सीजन निकल गया, तो इसके पास रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं है, तो इसलिए ये कोरोड नहीं होता. फिर बी, द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1, ये वाला इज रस्टेड बिकॉज आयरन नेल मेटल विथ ऑल द रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, सब कुछ है इसमें. ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन द फॉर्म, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मटेरियल्स. तो तीनों चीजें हैं इसमें, करोड़ होगा ही. फिर अभी तीसरा देखते हैं ये करोड़ होगा कि नहीं होगा. इसमें क्या बोलते हैं, द नेल इन द टेस्ट Tube 3 is not rusted because calcium chloride is one of the best absorbent. Absorb करता है, so it absorbs all the dissolved oxygen present in the water. Hence corrosion process not taking. यहाँ पे आपने बॉइलिंग से ऑक्सीजन को निकाला, यहाँ पे आपने कैल्शियम क्लोराइड की वजह से वो पूरा ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस नेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसकी वजह से करोड नहीं. तो बेटा इस तरह हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की. और कल मंडे को, परसों आपका टेस्ट रहेगा इस चैप्टर का. ये टेस्ट के देखते हैं कितनी सीरीज हम लेंगे.
1 में 2 में 3 में जितना हम कवर पाएं चैप्टर, तो अभी कंटिन्यूसली आपका टेस्ट रहेगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। आपके पास सैटरडे है, संडे भी है, तो वी विल टेक नो टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कैसा रहेगा, आपको 9 से 10 के बीच में 9 बजे एग्जैक्ट लिंक मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, आपको ऑनलाइन इसका आंसर भरना है। वो लिंक एक्टिव रहेगा 10 बजे तक, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा जो भी लिंक में आंसर भेजना है वो सबमिट करना है। तो अब ये टेस्ट सीरीज के लिए रेडी रहिए। इस चैप्टर को आप रेगुलरली रिवाइज कीजिए। चलो, धन्यवाद।